Okay, G. As people start joining in, they can always let me know in the comment section whether they can hear me or they can't hear me. Perfect, Jamshed, you're here. Uh, let's give this a minute so that other people may join in, and then we'll take a formal start. If anyone here can confirm if I'm audible or not. Thank you, Sohail. Perfect. So let's take a formal start. Assalamu alaikum. My name is Awais Aftab Bhatt. I hail from the city of Lahore, and I recently appeared in CSS 2019, and I was allocated to Pakistan Audit and Account Service. Today, Al Bahriya Institute Management requested me to have a question and answer session, to have a live discussion with all the young aspirants. Actually, it's always a pleasure to talk to young aspirants and civil servants, to be civil servants who want to join this prestigious service and who want to play their part in building a better Pakistan. So I would start my discussion with a brief introduction about myself, then some frequently asked questions which are surely going to be featured in this video, which you people are definitely going to ask. I have noted them down. Then I'll come straight towards your queries, because your queries are most important. All right. I started my CSS journey in July 2018. If I talk about my qualification, I'm a business grad from IBA Punjab University. Then right after my qualification, my degree, I joined corporate sector. I have been part of one of the largest banks in Pakistan for the last 8 years, around 8 years. Doing CSS was always a dream. There was always an urge to join this prestigious service, but right after the completion of my degree, I joined the corporate sector, and the wheel of corporate sector just pushed me ahead and ahead, and I couldn't pursue my dream as I had imagined it to be. But one day I realized that this is a dream that I cannot afford to jettison. I just have to go for it. So I just started my preparation in July 2018. I started with English essay and Pressy preparation. I joined classes of these two subjects, and in the last 3 months before exam, I took off from a job, and then I went for the exam. So you can say it was a journey of around 7 to 8 months, and there is always some homework that you do before your actual preparation. Like I remained connected with Dawn newspaper during my job, so that helped me a lot. If I talk about my yes, now we come to some frequently asked questions, that the questions that keep propping up in the minds of many aspirants. One very pertinent question in this regard is what is the time duration to complete the preparation for CSS?
CSS की तैयारी के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। आप लोगों के क्वेश्चंस मैं लेता हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लूँ आप लोगों को, तो हम उन्हीं पे आते हैं अभी। टाइम ड्यूरेशन में एक चीज़ समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग कहाँ पे खड़े हैं, आप किस पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ से आपने तैयारी का स्टार्ट लेना है। देखें, अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, तो आप 4-5 माह में CSS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल कैंडिडेट है मेरी तरह, तो यू कैन टेक अप टू 1 ईयर। आप एक साल में इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। यू पीपल कैन प्रिपेयर फॉर CSS इन 1 फुल ईयर। अब जैसे ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा कम्पटिटिव हो रहा है और ज़्यादा एनालिटिकल स्किल्स इसमें रिक्वायर्ड हैं। तो आप एक साल का अर्सा इसमें लगाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें, खुद से करें या जैसे भी आपने करनी है, किसी एकेडमी के ज़रिए करनी है या खुद से करनी है, आप इसमें टाइम इन्वेस्ट करें। क्योंकि अगर आप अपने आप में टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे आज, तो आपको रिटर्न कैसे मिलेगा। तो आपने प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करना है। आपका टाइम वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, 6 माह से 4 माह, 5 माह, 6 माह, 8 माह, साल, ये डिफरेंट कैंडिडेट्स के लिए डिफरेंट टाइम पीरियड होता है। तो इसमें आप एक डेफिनेट बात नहीं कर सकते। दूसरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी, सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल्स कैसे की जाए। देखें, ऑप्शनल्स की सिलेक्शन में आप लोगों ने अपनी डिग्री को बहुत वेटेज देनी है। आपका जो बैकग्राउंड है, अगर आप इंजीनियर हैं या डॉक्टर हैं, तो आप देखें कि इस डिग्री से रिलेटेड सब्जेक्ट कौन से आपको सूट करते हैं, उनका सिलेबस देखें, उनमें देखें। इंटरेस्ट तो डेफिनेटली आपका होगा, आपने उस डिग्री पे कोई 2 साल 4 साल लगाए होंगे। उसके बाद आप उस सब्जेक्ट के स्कोरिंग ट्रेंड को भी देखें थोड़ा सा, उसको बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि स्कोरिंग ट्रेंड भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इन 2-3 चीज़ों को बेस बना के अपने डिग्री को, अपने इंटरेस्ट एरिया को, स्कोरिंग ट्रेंड को बेस बनाएं और उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन करें। जैसा कि आई वॉज बिज़नेस ग्रेजुएट, सो मेरे लिए जो आइडियल सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है। अगर मैं IR की तरफ जाऊंगा या पॉलिटिकल साइंस की तरफ जाऊंगा, तो वो मेरा सेकेंडरी या टर्शरी ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन मुझे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को देखना चाहिए। तो अपनी डिग्री को, अपने बैकग्राउंड को ड्यू वेटेज दें, अपने इंटरेस्ट को वेटेज दें, स्कोरिंग ट्रेंड को वेटेज दें। इन सब चीज़ों को, ये प्रेफरेंशियल ऑर्डर में है, सब चीज़ों को वेटेज दे के आप अपने ऑप्शन को डिसाइड करें। अच्छा जी, ये तो कुछ हो गए बेसिक क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू बी टुगेदर फॉर अराउंड 30 मिनट्स। सो इसमें मैं कोशिश करूँगा आपके मैक्सिमम जो क्वेरीज़ हैं उनको रिस्पॉन्ड कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, हम अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो यू पीपल कैन स्टार्ट पोस्टिंग योर क्वेरीज, आई विल बी टेकिंग देम वन बाय वन। अच्छा, एज लिमिट का पूछ रहे हैं लोग, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये आप FPSC की वेबसाइट पे देखें, 30 इयर्स है वैसे एज लिमिट फॉर नॉर्मल कैंडिडेट्स, और 32 इयर्स है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। मेरे ऑप्शंस जो थे, मेरे ऑप्शंस में IR शामिल है, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ और इंडो पाक हिस्ट्री, ये मेरे ऑप्शंस थे। और मेरी ग्रेजुएशन, आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम IBA पंजाब यूनिवर्सिटी, आई डिड माई MBA फ्रॉम देयर। अंडर ग्रेजुएट्स, फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं, वो सवाल है जी, व्हाट अबाउट सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल्स बाय दोज कैंडिडेट्स हु आर अंडर ग्रेजुएट और फ्रेश ग्रेजुएट। अब्दुल हमीद साहब का ये क्वेश्चन है। आप जिस सब्जेक्ट में भी डिग्री कर रहे हैं, आप अपनी डिग्री तसल्ली से करें। डिग्री के बाद वाली जो स्टेज है जिसमें आपने अपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं, कोई भी डिग्री ऐसी नहीं है कि वो स्पेशल हम कहें कि ये एक डिग्री है जो CSS में बहुत हेल्प करेगी। कोई भी डिग्री आप करें, उसके बाद आपने ऑप्शंस चूज़ करने हैं। ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, अपनी डिग्री के मुताबिक चूज़ करें, आपको मिल जाएंगे। और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जो सब्जेक्ट का राइट है वो आप उसको ड्यू टाइम है उसको दें,
तो आप इंशाल्लाह अच्छा स्कोर करेंगे इस ऑप्शन में। सर हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश, इम्मा अली का सवाल है। इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए आप लोग सबसे पहले अपने टेंसेस पे काम करें। आपकी इंग्लिश स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए। यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन इंग्लिश टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये बेसिक है जो आपको सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करेगी, क्योंकि इंग्लिश में आपने 11 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपने इंग्लिश में अटैम्प्ट करना है। तो आपको अगर इंग्लिश लिखनी ही नहीं आएगी तो आप कैसे आगे चलेंगे। तो टेंसेस से, एक्टिव पैसिव से, अखबार पढ़ने से, कोई भी नावल पढ़ लें, अखबार पढ़ लें। अखबार पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, डॉन न्यूज़ ले लें, कोई न्यूज़पेपर ले लें, ज़्यादा बेहतर है। तो इन चीज़ों से स्टार्ट करें, अपने टेंसेस से स्टार्ट करें, आपकी इंग्लिश आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होगी। अपनी ग्रामर ठीक करें और इंग्लिश की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। इन चीज़ों और रीडिंग अपनी बढ़ाएं। डॉन आप डेली पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। सो ये दीज आर कम्बिनेशन ऑफ टूल्स विच कैन हेल्प इम्प्रूव योर इंग्लिश। What is the main thing to keep in mind in the interview phase? इंटरव्यू फेज़ में सर इंटरव्यू इंग्लिश में लिया जाता है या उर्दू में? इंटरव्यू इज़ बाइलिंगुअल। इंटरव्यू जिस भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन करेगा आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देना है। अगर वो उर्दू में सवाल पूछें तो आपको उर्दू में जवाब देना है, इंग्लिश में सवाल पूछें तो इंग्लिश में जवाब देना है। और इंटरव्यू में आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, देखें आपके पास कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपके पास नॉलेज होगा, आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, वही आपके कॉन्फिडेंस की सूरत में रिफ्लेक्ट होगी। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने नॉलेज पे, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, अपने इर्द गिर्द के हालात पे, करंट अफेयर्स पे, क्या हो रहा है दुनिया में, सारा कुछ उन पे नज़र रखनी है। इंटरव्यू के काफ़ी 4-5 एरियाज़ हैं जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना होता है। आपको जॉब का एरिया भी आ जाता है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन भी आ जाती है, डिग्री आ जाती है, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। सो देयर कम्बिनेशन ऑफ एरियाज़ जिन पे आपको काम करना है और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उन तमाम एरियाज़ पे काम करके अपनी लैंग्वेज पे काम करें, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम करें अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है। जेंडर स्टडीज़ कैसा सब्जेक्ट है और साइंस का सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए? जी, फ़िज़िक्स चूज़ करते हैं। हमारी कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफ़ी लोग आए हैं इस दफ़ा जिनका फ़िज़िक्स सब्जेक्ट था और उन्होंने फ़िज़िक्स को पे प्रॉपर काम किया और उसमें उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया है। तो साइंस का सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फ़िज़िक्स की मिसाल मेरे सामने है, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जेंडर स्टडीज़ भी अच्छा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम है, कभी कभी टारगेट हो जाता है, लेकिन अगर आप इस एक बात है कि अगर किसी सब्जेक्ट का आप हक अदा करते हैं, उस पर प्रॉपर काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो नोट्स बनाते हैं, उसमें आप अपनी तैयारी को आप प्रॉपर इम्बेलिश करते हैं डिफरेंट रेफरेंसेस से, कोट्स से, फैक्ट्स एंड फिगर्स से, तो एग्जामिनर हैज़ नो रीज़न नॉट टू गिव यू मार्क्स। तो आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें, लॉन्ग नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, तो आपको उसमें मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चंस कुछ स्किप भी होते जा रहे हैं। पब्लिक एड बेस्ट है या यूएस हिस्ट्री एंड क्रिमिनोलॉजी? प्लीज़ गाइड मी, इज दी सब्जेक्ट्स बैकग्राउंड मोर स्ट्रगल? ऑप्शनल्स में हर ऑप्शनल्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑप्शनल्स को चूज़ करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। बेस्ट बुक, आई थिंक बेस्ट बुक फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने जो बुक्स कंसल्ट की थी वो जोशुआ गोल्डस्टेन की बुक थी और किगली की बुक थी। इसके अलावा इंटरनेट इज़ वेरी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आपको कंटेम्प्रेरी आपको जो मैगज़ीन्स हैं डिफरेंट, आपका फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन है और इकोनॉमिस्ट है, आपका लोकल मैगज़ीन्स भी हैं कुछ, तो डिफरेंट आर्टिकल्स उनमें आते हैं, उनको आप देखें तो आईआर की आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। मैंने मेनली ये 2 बुक्स कंसल्ट की थी, इसके अलावा भी आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा जी, डू यू नो एनी एस्पायरेंट हु हैव डन ग्रेजुएट इन फिज़िक्स एंड हैव पास? जी, मैंने अभी बताया कि फ़िज़िक्स भी लोगों ने लिया और पास भी किया है। हाउ टू बी मोटिवेटेड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? बिल्कुल, ये एक लंबा फेज़ है, एक इसमें डेडिकेशन, एक कमिटमेंट चाहिए होती है। बिल्कुल आपको कमिटेड रहना है और हार्ड वर्क करते रहना है। आप मोटिवेशनल बीच में वीडियोस भी देख सकते हैं, आप अपना ग्रुप स्टडी कर सकते हैं अपनी मोटिवेशन लेवल को अप रखने के लिए। तो
इट्स वेरी नेचुरल कि एक लंबी लंबी तैयारी है, उसमें अप एंड डाउन आएंगे, तो आपको कोशिश करनी है जो आपके डाउन मोमेंट्स हों वो थोड़े हों और आप रिकवर जल्दी से आप अप मोमेंट में दोबारा आ जाएं। अपना ग्रुप बनाएं, ग्रुप स्टडी करें, बहुत से फॉरम्स अवेलेबल हैं, आप गाइडलाइन लें इंटरनेट से, तो इंशाल्लाह आप मोटिवेटेड रहेंगे। माय फ्रेंड आस्किंग यू टेल अबाउट सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बात की है पहले सर, CSS टफ है या इजी है? अच्छी तैयारी करेंगे तो इजी है सर। आई हैव टेकन एडमिशन BS इंग्लिश। सर MBBS ग्रेजुएट कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, गाइड मी प्लीज़। बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं जी हर साल CSS में, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बहुत बड़ा इनका चंक होता है। और आप अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन डिग्री के हवाले से देख लें या जनरली आप पॉलिटिकल साइंस है, IR है, सब्जेक्ट्स आप डिफरेंट एक्सप्लोर कर सकते हैं। पंजाबी, डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके इंटरेस्ट पे, आपके बैकग्राउंड पे, आपके स्कोरिंग ट्रेंड पे डिपेंड कर रहा होता है। सर क्या हम, अच्छा जी सवाल है अब्दुल जब्बार का, सर क्या हम पाकिस्तान स्टडी एंड इस्लामिक स्टडी उर्दू में दे सकते हैं? पाकिस्तान स्टडी नहीं दे सकते, इस्लामिक स्टडीज़ दे सकते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है, यू कैन आइदर ऑप्टेड इन उर्दू और इन इंग्लिश। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए यू हैव द ओनली ऑप्शन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। क्या नेचुरल साइंसेस का स्टूडेंट्स भी क्लियर कर सकता है CSS? उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है? जी बिल्कुल क्लियर कर सकता है। आप एक दफ़ा तैयारी के फेज़ में आएंगे तो डेफिनेटली आप फिर न्यूज़पेपर के साथ, ख़बरों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो यू कैन ऑलवेज़ मेकअप। आप लोगों का स्टडी का स्टेमिना तो पहले से ही अच्छा होता है, तो आप लोग डेफिनेटली मेकअप कर सकते हैं। और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, BSc वाले, MSc वाले लोग काफ़ी आते हैं। कैन अ BA पास्ड पर्सन टेक CSS एग्ज़ाम? येस यू कैन टेक। आपने ऐसे कितने पेजेस का लिखा था? शहजादी आसिफ का सवाल है। मैंने जी पेजेस तो मुझे याद नहीं, कोई 18 से 20 पेज होंगे आई थिंक, और तकरीबन 2000 वर्ड्स का लिखा था। और ऐसे में कोई ऐसा नहीं है कि आप 2500-3000 की वर्ड लेंथ पूरी करेंगे तो आप ऐसे पास करेंगे। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 1500 वर्ड्स का भी ऐसे लिखा है और उन्होंने पास किया है। मसला ये है कि ऐसे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है CSS का, और इसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फेलियर रेट आता है। ऐसे पे आपने रेलिवेंट बात करनी है। ऐसे में 3 चीज़ें आप नोट कर लें अपने पास कि ऐसे में ये 3 चीज़ें नहीं होंगी तो ऐसे पास नहीं होगा। ऐसे की प्रिपरेशन के लिए आपकी रेलिवेंस नहीं होगी। अगर आपकी रेलिवेंस नहीं होगी, अगर आपकी ग्रामर करेक्ट नहीं होगी, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, ये 3 एलिमेंट्स निकाल दें तो ऐसे आपका पास होना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ठीक है। आपने जो बात करनी है, रेलिवेंट बात करनी है, आपने करेक्ट इंग्लिश में उसको लिखना है, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। आपने कोई 10 से 15 ऐसे फुल फ्लेज लिखे हों पेपर में बैठने से पहले, जब आप ऐसे के पेपर के लिए बैठें, आपने 10-15 ऐसे घर में लिखे हों, एग्ज़ाम सेटिंग में लिखे हों, तो आपका ऐसे ठीक हो जाएगा। क्योंकि घर में जो प्रेपरेशन फेज़ में आप ऐसे करेंगे उनमें तो आपने मटेरियल भी सर्च किया होगा, आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स भी होंगे, लेकिन पेपर में आपको एक अनसीन ऐसे आ जाएगा। आपको वहीं पे आउटलाइन बनानी है, वहीं पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और सारा आपको ऐसे वहाँ पे ही फ्रेम करना है। तो प्रैक्टिस के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे के लिए मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, किसी मेंटोर से ज़रूर इवैल्यूएशन करवाएं अपने ऐसे की प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल ख़ुद पे रिलाई ना करें, किसी से ज़रूर, कोई क्वालिफाइड बंदा उसको चेक करवाएं, किसी मेंटोर को, किसी एकेडमी में ज़रूर इवैल्यूएशन करवाएं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाके पहला ऐसे लिखें और आप कहें कि मेरा ऐसे वो पास हो जाएगा। उसका सिर्फ 0.001% चांस होगा, ठीक है। आपने ऐसे पे काम करना है प्रॉपर, ऐसे पे भी, प्रेसियन कंपोजिशन पे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स इसी हद तक आप खुद से तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन 2 सब्जेक्ट्स में इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उस पर लाजमी काम करना है, ठीक है। ऐसे के लिए मैं आपको मज़ीद एक थोड़ा सा, मैंने अपना एक ऐसे भी निकाला था आप लोगों से डिस्कस करने के लिए, थोड़ा सा 1-2 मिनट में इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब एक टॉपिक अगर आ जाता है जी, एवरीथिंग दैट इज़ परसीवेबल इज़ अचीवेबल। टॉपिक का नाम है जी
एक मिनट के लिए अपने क्वेश्चंस होल्ड ऑन करें, मैं इस पर 1-2 मिनट बात करूँगा। एवरीथिंग विच इज़ परसीवेबल इज़ अचीवेबल। अब इस एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, थोड़ा सा ख़ुद से फ्रेम करने वाला टॉपिक है, खुद से आपने सोचना है। अब इसमें जो मुझे रेलिवेंट आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं जो मैंने बनाए, मैंने भी ये ऐसे बिल्कुल ऐसे था कि हमारी ये क्लास थी, हमारे वर्दी टीचर हैं सर आसिम साहब, वो उनकी क्लास थी और उन्होंने एक टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पर लिखें। हमने इस टॉपिक को बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था। मैंने फिर इस पर आउटलाइन बनाना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पास किया ऐसे। अच्छा, अब इसकी आउटलाइन में हम क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे कि जी इस फ्रेज़ का मतलब क्या है, एवरीथिंग विच इज़ परसीवेबल इज़ अचीवेबल। उसको एक्सप्लेन कर दिया, आगे चलें। अब हमने सारी एग्जाम्पल्स देनी है, थोड़ा सा लिटरेरी किस्म का ऐसे है, इसमें एग्जाम्पल्स से हमने चलाना है इसको कि कौन सी चीज़ें हैं जो इस टॉपिक के साथ लिंक करती हैं, कैसे हम साबित कर सकते हैं कि हर चीज़ जो परसीव की जा सकती है वो अचीव की जा सकती है। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या लिखा जी? पहला पॉइंट मैंने लिखा इलामा इकबाल्स आइडिया ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का आइडिया क्या था? एक परसीव किया, एक चीज़ को सोचा और वो अचीव हो गया। इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, अ प्रोडक्ट ऑफ परसेप्शन। नंबर 3, एवरी इन्वेंशन वॉज फर्स्ट परसीव्ड बिफोर इट वॉज इन्वेंटेड। कोई भी इन्वेंशन आप ले लें, बल्ब की इन्वेंशन ले लें जो एडिसन ने इन्वेंट किया, उसने पहले उसको सोचा फिर उसको इन्वेंट किया। फ्लाइंग इन द एयर वॉज अ ड्रीम दैट वॉज फुलफिल्ड। हवा में उड़ना एक ख्वाब था जो पूरा किया गया। रियल टाइम कम्युनिकेशन वॉज वंस एन इमेजिनेशन। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मून अ ह्यूमन परसेप्शन। न्यूक्लियर वेपन्स एन ईवल परसेप्शन। ग्लोबल सुपर पावर, चाइना's ड्रीम इन द मेकिंग। Global village, a product of perception. Conquest of Mars, a perception made reality. और फाइनली मैंने लिखा जी इमरान खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब इन सारे पॉइंट्स में आप देखें कि एक आइडिया को परसीव किया गया और फिर उसको अचीव किया गया। अगर हम एवरीथिंग विच इज़ परसीवेबल दैट इज़ अचीवेबल। अब इस तरह की बातें आपने ऐसे में करनी है। आपने किसी भी चीज़ पे ऐसे आता है, आपके पास बहुत सारा मटेरियल होगा उस ऐसे को लेके, लेकिन आपने बात वो करनी है जो इस टाइम टॉपिक से रिलेट कर रही है। ठीक है, टॉपिक से रिलेट करेंगे तो एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, रेलिवेंट रहेंगे तो मार्क्स देगा। रेलिवेंट नहीं है तो आपने 20 सफ़े लिख दिए हैं, 25 सफ़े लिख दिए हैं, वो आपको फेल कर देगा। आपने रेलिवेंट रहना है, करेक्ट इंग्लिश लिखनी है और आपने ऐसे का जो है कोशिश करनी है, सारे जो कंपोनेंट्स हैं, आउटलाइन है, इंट्रोडक्शन है, आर्गूमेंट्स बिल्डिंग है, फिर कंक्लूजन है, एक इम्प्रेसिव अंदाज में, अच्छे अंदाज में उसको पेश करना है ताकि आप ऐसे में फ्लंक ना करें। आपके लोगों के 700 मार्क्स होते हैं, 700 प्लस मार्क्स होते हैं, बट दे फेल इन ऐसे। और उनकी सारी प्रेपरेशन जो है, सारा उनका जो CSS का एक जर्नी होती है, वो वो ड्रीम जो है वो रह जाता है इस वजह से। तो ऐसे पे ख़ास फोकस करें। ठीक है, ऐसे पे हमारी बात होगी काफ़ी डिटेल में। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जी, और टाइम हमारे पास अभी है कुछ 10-1 मिनट हैं। कैन ए BS स्टूडेंट पास स्टूडेंट? येस श्योर सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BS 3rd ईयर नाउ, मैं आई रीड नाउ, काइंडली गाइड मी सर। अच्छा जी, BS 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन हो जाएगी तो आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप सिर्फ अखबार के साथ कनेक्टेड रहें, कुछ मैगजीन्स देख लिया करें कभी कभी। CSS की प्रिपरेशन ऐसी है जी, इसको एक डिग्री के तौर पे लें। आप ये ना समझें कि आप BA की डिग्री पे 2 साल लगाते हैं, आप BCom पे 2 साल लगाते हैं, तो CSS पे क्यों नहीं लगाते? 1 साल भी नहीं लगाते। आप कहते हैं CSS 1 महीना पढ़ के हो जाए। CSS पे टाइम इन्वेस्ट करें, CSS को डिग्री के तौर पे कंसिडर करें। समझ लें कि जी डिग्री है जो 1 साल की तैयारी के बाद होनी है। ठीक है, उस साल में फिर उसको उसका ड्यू राइट दें, उसके बारे में आप प्रॉपर गाइडेंस लें, सब्जेक्ट सिलेक्शन पे काम करें और सबसे पहले अपने आप पे काम करें। हार्ड वर्क तो फाइनली आपने करनी है। तो इंशाल्लाह आप इस तरह से उसको डिग्री के तौर पर ट्रीट करेंगे तो आप इस ड्रीम को डेफिनेटली अचीव करेंगे और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा आप ज़रूर बन सकेंगे। अच्छा जी सर, टेल अस अबाउट इंग्लिश ऐसे एंड आउटलाइन मेकिंग प्लीज़। उस पर बात हो गई सर। करंट अफेयर की क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाता है? मोहम्मद फ़हीम का क्वेश्चन है, करंट अफेयर के क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है?
एसे के इंट्रो की तरह या इसको डिफरेंट हैंडल किया जाता है? जी, करंट अफेयर के क्वेश्चन में एसे की तरह इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं लिखना आपने। एसे का इंट्रोडक्शन 1 पेज का 1.5 पेज तक, 1 पेज का तो लाजमी होगा, कुछ लोग 1.5 पेज तक भी ले जाते हैं। अराउंड 150 वर्ड्स तक उसकी लेंथ होनी चाहिए और 1 पेज की मुनासिब लेंथ होती है, ज़्यादा भी हो सकती है इंग्लिश एसे के इंट्रोडक्शन की, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने कोशिश करनी है अच्छी इंग्लिश लिखें, अच्छे एक्सप्रेशन से बात करें, क्योंकि वो एक ओपनिंग है, वो आपके एसे का फेस है, तो उसको अच्छे से लिखना है आपने। जबकि करंट अफेयर का जो पेपर है उसमें आपका इंट्रोडक्शन मैक्सिमम आधे पेज का होगा, उसमें उससे ज़्यादा नहीं आपने जाना, क्योंकि करंट अफेयर में जो उसने बात पूछी है, जो क्वेश्चन पूछा है, उसको आपने रिस्पॉन्ड करना है, ना कि आपने इंट्रोडक्शन में एक लंबी कहानी लिखनी है। इंट्रोडक्शन आप मैक्सिमम हाफ पेज का उसमें लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं आप जाएंगे। ठीक है। हाउ टू मेमोराइज वोकेबलरी एंड हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, फिदा दावर का क्वेश्चन है जी। वोकेबलरी आपने डेली बेसिस पे ले लें, 5 वर्ड्स ले लें, 10 वर्ड्स ले लें, डेली बेसिस पे उनको याद करें, उनको यूज़ करें अपनी लैंग्वेज में, उनको रिवाइज करें टाइम टू टाइम। सबसे बढ़ के ये है कि उनको बोलने में यूज़ करें और लिखने में भी यूज़ करें। जितना ज़्यादा आप उनको यूज़ करेंगे उतना अच्छा आपको मेमोराइज हो सकेंगे। सर आई हैव टेकन एडमिशन इन BS इंग्लिश, आई नीड फॉर CSS फ्रॉम नाउ बिकॉज आई लिव इन फाटा से भी हमारे बैचमेट्स हैं इस दफ़ा जिनकी सिलेक्शन हुई है, और आप भी मोटिवेटेड रहें। मिकाइल खान, आप करंट अफेयर्स के साथ रहें कनेक्टेड और अपनी इंग्लिश पे काम करें इस स्टेज पे। बाकी जब आप प्रिपरेशन फेज़ में आएंगे तो दिल लगा के तैयारी करें। CSS फॉर फार्मरी डॉक्टर, प्लीज़ एक्सप्लेन सर हाउ कैन वन सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्शन पे काफ़ी बात हो गई पहले। गुड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से क्या चूज़ करना है, क्या कौन सा सब्जेक्ट लेना है? दोनों सब्जेक्ट अच्छे हैं जी, दोनों के। गुड गवर्नेंस भी अब काफ़ी लोग लेते हैं, मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं, और ज़रा नया सब्जेक्ट है गुड गवर्नेंस। दोनों की सिलेबस देखें, उनके पास पेपर्स देखें, आप बेहतर तरीके से उनको डिसाइड कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को देखना है उसका सिलेबस देखें, सिलेबस आपको बताएगा क्या बॉर्डर्स हैं, क्या एरियाज़ हैं जिनसे बाहर उसने नहीं जाना। फिर पास पेपर देखेंगे आप, पास पेपर आपको बताएंगे कि कौन से उसके फेवरेट एरियाज़ हैं, किन एरियाज़ को वो ज़्यादा पसंद करता है, कौन से एरियाज़ मैंने अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, ये इस बैलेंस को आपने लेके चलना है। पास पेपर्स में जो सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करें, तब 360 एंगल अप्रोच रखें, हर एंगल से तैयार करें, अच्छा उन पर मटेरियल इकट्ठा करें। उसके अलावा भी जो लेस फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं क्वेश्चंस, उनको भी तैयार करें ताकि अनसर्टन एग्ज़ाम को भी आप अच्छे से टैकल कर सकें। सर, थीसिस स्टेटमेंट इज़ कंपल्सरी फॉर एसे एंड इफ़ इट इज़ देन टेल समथिंग अबाउट इट। थीसिस, साजिदा तलत का क्वेश्चन है। साजिदा तलत, थीसिस स्टेटमेंट शुड बी आइडियली पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। उसमें 2 अप्रोचेज़ हैं। कुछ लोग उसको अपनी आउटलाइन में ही लिख देते हैं, अलहदा से लिखते हैं प्रोमिनेंट करके, वो भी ठीक है, वो भी वैलिड है, वैसे लोग भी पास होते हैं। कुछ लोग उसको अलहदा से नहीं लिखते, उसको अपने इंट्रोडक्शन का ही पार्ट बना देते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन का पार्ट वो लाजमी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने अलहदा भी नहीं लिखी, इंट्रोडक्शन में भी नहीं लिखी, तो फिर तो आपने बात ही नहीं की ना, अपना स्टांस ही नहीं लिया। सो दोनों तरीके, दोनों अप्रोचेस वैलिड हैं। पर्सनली मैंने जो अप्रोच फॉलो की, मैंने उसको अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट बनाया था, थीसिस स्टेटमेंट को अलहदा से नहीं लिखी थी, और आप लोग कोई भी एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं इस हवाले से। सर, हाउ टू इम्प्रूव ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच, प्रेसी, इडियम्स। कोई भी ग्रामर की बुक ले लें, मार्केट में काफ़ी बुक्स अवेलेबल हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, और देयर आर मैनी। कोई भी BA लेवल की बुक ले लें, उसमें से टेंसेस की प्रैक्टिस शुरू कर दें, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट प्रैक्टिस है जिससे आप अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। अगर आपकी उर्दू ट्रांसलेशन इवन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो भी करें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को उर्दू ट्रांसलेशन में भी मसला होता है, वो भी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से क्या चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा जी, केमिस्ट्री स्कोरिंग और नॉट नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर MSc स्टूडेंट। केमिस्ट्री के बारे में देखना पड़ेगा, कुछ लोग ऑप्ट करते हैं, लेकिन इस स्कोरिंग ट्रेंड का मुझे आइडिया नहीं है। सर, डेली हाउ मैनी आवर्स रिक्वायर्ड फॉर स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने घंटे लगाएं जी? देखिए, घंटों का हिसाब आपने खुद करना है। मेरी अप्रोच ये है कि आप अपनी डेडलाइंस बनाएं।
अपनी मंथली, वीकली और डेली की डेडलाइंस बनाएं और उन डेडलाइंस को मीट करें। फिर उस डेडलाइन को मीट करने के लिए आप 4 घंटे में उसको मीट कर लेते हैं, 6 घंटे में करते हैं या 10 घंटे में करते हैं, आपने डेडलाइन के हिसाब से चलना है। फिर अगर उस दिन वो डेडलाइन मीट नहीं हो सकी तो उसको वीक के किसी और दिन में कंपनसेट करना है, उसमें अपने ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो घंटों की बजाय अपनी डेडलाइंस पे फोकस करें। आपका सब्जेक्ट से आपका सब्जेक्ट है जी जेंडर स्टडीज़ का, आपने डिसाइड किया 15 दिनों में इस सब्जेक्ट को ख़त्म करूँगा। 15 दिन का आप शेड्यूल बनाएं। डेली मैंने इतना कवर करना है, मेरी वीकली डेडलाइन ये है, मेरी फोर्टनाइटली डेडलाइन ये है। फिर ट्राई टू अचीव दोज डेडलाइंस, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलें, अपने डेडलाइंस को मिस ना करें। डेडलाइंस को लेकर चलेंगे तो आप हर सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। कम्बिनेशन के बारे में यू आर द बेस्ट जज, आप खुद ही डिसाइड करें। अब फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं, क्राइटेरिया मैंने बता दिया। नो अदर पर्सन कैन गाइड यू, कैन टेल यू एग्जैक्टली कि आपका कम्बिनेशन क्या होना चाहिए। और इस तरह की सजेशंस पे ब्लाइंडली अमल भी ना करें। काफ़ी सारे लोग बहुत देर से एक जो कम्बिनेशन था जी, बहुत फेमस कम्बिनेशन एकेडमीज़ ने कुछ बनाए और उनको प्रमोट किया, उस पर ना जाएं। अपना इंटरेस्ट एरिया देखें। आप देखें आपकी डिग्री किस में है, आपका इंटरेस्ट एरिया किस में है, आपका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, खुद ही डिसाइड करें। उनका सिलेबस देखें, उनको स्किम थ्रू करें, खुद ही डिसाइड करें अपने लिए ऑप्शंस। बर्निंग ऐसे टॉपिक बाय योर रिकमेंडेशन, आपके पास जी आ जाएंगे एग्ज़ाम के करीब 2-3 माह पहले तक आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे। इस साल का जो बर्निंग टॉपिक है वो कोविड-19 है और उसको हर एंगल से तैयार करें, उसके इम्पैक्ट्स देखें, ग्लोबली उसको रिलेट करें ग्लोबलिज़म के साथ और वर्ल्ड ऑर्डर के साथ, उसके इम्पैक्ट्स देखें, नेशनली देखें, उसको रीजनली देखें, इंटरनेशनली देखें। ये एक टॉपिक है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज है, कुछ सदाबहार एवरग्रीन टॉपिक्स हैं जैसे कि डेमोक्रेसी है, विमेन है, आपका एजुकेशन है, ठीक है। इन टॉपिक्स पे आपका रूल ऑफ लॉ है। ये कुछ 10 से 15 टॉपिक्स हैं जो आपको टच करने होते हैं हर दफ़ा। उन पर तैयार करें, उन पर मटीरियल इकट्ठा करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स इकट्ठा करें, ताकि किसी भी एंगल से वो टॉपिक आए तो आप उसको स्टेटमेंट के मुताबिक, ऐसे कि स्टेटमेंट के मुताबिक टैकल कर सकें। कंपलसरी सब्जेक्ट्स और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 2 in 1 का वे बन सकता है। हाँ जी, आप एक कंपलसरी एक ऑप्शनल साथ साथ लेके चल सकते हैं, जैसे विच सूट्स टू बेस्ट। अच्छा, आई थिंक अब मैं 1-2 क्वेश्चन लूँगा मज़ीद, फिर हम बाकी डेफिनेटली आप इस पेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। सर प्लीज़ कोई एक एग्जांपल दें कि आपने करंट अफेयर के किसी एक क्वेश्चन में किस तरह इंट्रोडक्शन लिखा था ताकि इररेलेवेंट ना हो बंदा इंट्रोडक्शन लिखते हुए। थैंक यू। अच्छा जी, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे बड़े आए थे, मेन स्ट्रीम आई थिंक आ गए थे। जैसे कि वाटर क्राइसिस पे आ जाता है जी, एग्जांपल ले लेते हैं। वाटर क्राइसिस पे सवाल आ जाता है कि वाटर क्राइसिस किस तरह से, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं जी हमारी इकोनॉमी के लिए। तो आप 1-2 लाइनें सिंपल लिखेंगे कि वाटर जो है, वाटर की अहमियत बहुत है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी वाटर इज़ लाइफ, ठीक है। उससे स्टार्ट लेंगे, 1-2 लाइन उसके बारे में लिखेंगे। आप देखेंगे कि इसके बड़े डीप इम्पैक्ट्स हैं, हर सेक्टर से, पॉलिटिकली देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, सोशली देख लें, हर एंगल से, जियोपॉलिटिकली देख लें। वाटर की बहुत अहमियत है, इसके बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, इसके डिफरेंट एंगल्स हैं। इस तरह से अपनी बात को स्टार्ट करेंगे आप इंट्रोडक्शन में, ठीक है। 2-4 लाइनों में स्टार्ट ले लें, 5-6 लाइनों में स्टार्ट ले लें। स्टार्ट करके आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे और फिर सीधा उसकी क्वेरी पे आएंगे। क्वेरी क्या है जी, इम्पैक्ट्स क्या हैं। इम्पैक्ट्स को आप फिर डिफरेंट लेवल पे देख सकते हैं, पॉलिटिकली क्या है, सोशली क्या है और इकोनॉमिकली क्या है। उनको 1 बाय 1 आप डिफरेंट हेडिंग्स दे के डिस्कस कर सकते हैं। कोई चार एक पेज में आप कोई 10 से 12 हेडिंग्स में आप उसके सवाल का जवाब देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पे आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस या कंक्लूजन वगैरह जो भी देना चाहें वो आप देंगे। कोई 6 पेज तक आपका स्टैंडर्ड एक जो कही जाती है क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए, 6 साइड्स ऑफ पेपर, ठीक है। मतलब ये अगर एक पेपर है तो ये एक साइड है और ये इसकी दूसरी साइड है, ठीक है। तो 6 साइड्स ऑफ पेपर आप में आप जवाब दें तो यू आर गुड टू गो, आप अच्छा स्कोर करेंगे। आपने अगर उसकी क्वेरी को आंसर किया है फैक्ट्स एंड फिगर से, डायग्राम से, मैप से, चार्ट से सब्सटेंशिएट किया है तो डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे।
सजेस्ट ए बुक फॉर एसे एंड प्रेसी, दिस इज़ गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। और एक और ले लेंगे क्वेश्चन। बुक जी कोई भी नहीं है, आप इंटरनेट से लें, अपना हर टॉपिक सा फाइनलाइज करें, अपने 10 से 15 हॉट टॉपिक्स, उन पे मटेरियल इकट्ठा करना शुरू करें नेट से, फिर वन बाय वन उनको हर एंगल से तैयार करें, उन पे एसेस लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा आउटलाइंस बनाएं, उनको चेक करवाएं, फुल लेंथ ऐसे लिखें, उनको चेक करवाएं, और इस तरह से आप अपने ऐसे की तैयारी करें। ठीक है, हाउ मेनी टॉपिक्स, 15 से ज़्यादा टॉपिक नहीं होते हर साल, तो 15 तक आप टॉपिक अगर कर लें तो उसमें से टॉपिक कोई ना कोई आ जाता है। ठीक है जी। इज़ अच्छा जी, सो टाइम टू से गुड बाय। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दोबारा आपके साथ कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हो जिसमें आपको गाइड किया जा सके और आपकी क्वेरीज को हैंडल किया जा सके। और आई होप कि हमने काफ़ी क्रिटिकल एरियाज़ पे आज बात की है, और मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की, और मैं कह सकता हूँ कि जो टेक्निक्स मैंने अप्लाई की एग्ज़ाम में वो वेरीफाइड टेक्निक्स हैं, और उनका फ़ायदा यंग एस्पायरेंट्स को भी हो। और मुझे खुशी होगी कि आप लोगों में से भी लोग हमारे CTP का पार्ट बने, सिविल सर्विस का पार्ट बने, और हमारा भी एक रिलेशन डेवलप हो सीनियर जूनियर वाला, तो इट वुड बी डेफिनेटली एन इमेंस प्लेयर। और मेरी कोई भी बात आपके काम आ सके तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। इंशाल्लाह दोबारा भी कोशिश करूँगा आपके साथ कनेक्टेड रहा जाए। तो अब टाइम इज़ ओवर, तो अब इसको ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।